Hello everyone. In the previous video we have discussed Henry Fayol's principles of management. So today we will discuss Taylor's principles of management. So let's start. Okay, first we will know about Frederick Winslow Taylor. He was an mechanical engineer in Midwell Company of America. He was born on 20 March 1856 in USA. His contribution to management is significant for every organization. Taylor wrote many books and studied the management scientifically. That's why he is known as father of scientific management and creator of new science. He has given 4 principles and 9 techniques. Let's discuss. Okay, first we will discuss principles. First principle is science, not rule of thumb. Taylor says that the organization must choose the best way to increase the efficiency and effectiveness. टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वे चूज करना चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ा सकें. द मेथड विच इज सेलेक्टेड साइंटिफिकली विल गिव बेटर रिजल्ट, सेव ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम एंड मटेरियल. जो वो मेथड चूज करेंगे साइंटिफिकली वो उनको बेटर रिजल्ट देगा, टाइम, मटेरियल, ह्यूमन एफर्ट्स तीनों को सेव करेगा. ही अपोज रूल ऑफ थंब स्ट्रिक्टली. वो ये कहते हैं कि रूल ऑफ थंब ऐसा कुछ नहीं है कि फॉलो ही करना पड़ेगा, जो है वही, ऐसा कुछ नहीं, हम चेंजेस ला सकते हैं बेस्ट वे अपना अकॉर्डिंग. सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. टेलर एम्फोसिस ऑन द हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर. टेलर जो है वो कहते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, और दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन एंड बोथ शुड एम टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हम कह सकते हैं कि एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए दोनों के बीच में ताकि प्रॉफिट्स जो है बढ़ाए जा सके. थर्ड, cooperation not individualism. This principle is an extension of harmony not discord principle. According to it, management and workers should cooperate with each other completely. ये प्रिंसिपल जो है एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का. इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. They should replace competition with cooperation. This can be possible when management gives proper time to workers and also welcome their suggestions. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए दूसरे से. ये पॉसिबल तभी होगा जब मैनेजमेंट प्रॉपर टाइम दे वर्कर्स को, और जो सजेशंस देते हैं वर्कर्स उनकी सजेशंस को वेलकम करें. फोर्थ, development of each and every person to his or her greatest efficiency. To increase efficiency, training should be provided from time to time. This will ensure minimum wastage and perfectness for both employees and management. इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंसी को ट्रेनिंग देनी चाहिए वर्कर्स को टाइम टू टाइम. इससे क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज होगी और परफेक्टनेस आएगी दोनों एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट में. Work should be assigned to the employees on the basis of his physical, mental and intellectual capabilities. जो काम है. So now we will discuss techniques. First, functional foremanship. This technique puts the workers under 8 different spatial foremen. It also differentiates from its execution. In this technique, 2 in charges are appointed. First is planning in charge and second is production in charge. So under planning in charge, there are 4 clerks. First is route clerk, who decides the way of production. Second, instruction card clerk, who provides instructions to workers. Third, time and cost clerk, who prepares time and cost sheet. Fourth, discipline clerk, who ensures discipline. And under production in charge, there are 4 boss, and the last one is inspector. So first is स्पीड बॉस, चेक द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क. वो चेक करते हैं कि टाइम से काम कंप्लीट हो. सेकंड, गैंग बॉस, कीपिंग मशीन्स एंड वर्कर्स रेडी. थर्ड, रिपेयर बॉस, इंश्योर्स फिटनेस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. फोर्थ, इंस्पेक्टर, चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क. सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स setting standards for each business activities like raw material, time, production, etc. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड फिक्स कर देना हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, चाहे वो
रॉ मटेरियल हुआ, चाहे टाइम, चाहे प्रोडक्ट, या जो भी है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक परफॉर्मेंस जो होती है वो स्टैंडर्ड वाली आती है, दोनों मैन एंड मशीन दोनों की। Simplification means eliminating unnecessary steps of business activities. It helps in reducing cost and optimum utilization of resources. Simplification का मतलब होता है कि काम को आसान कर देना। दैट मीन्स जो अननेसेसरी स्टेप्स है बिजनेस एक्टिविटीज़ में उनको बीच में से हटा देना। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कोस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। जैसे कि शू में साइज 4.5 ना रखकर सीधे 6 कर दे, 5 कर दे। तो बीच में जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं एक्टिविटीज़ की बिजनेस की, उनको हटा देना। थर्ड इज वर्क स्टडी। The first one is a method study. Taylor suggests that management should find one best way out of many ways to perform the task. It helps to minimize the cost of production and to maximize the quality and satisfaction of the customers. टेलर सजेस्ट करते हैं जो मैनेजमेंट है उसको बेस्ट वे चूज करना चाहिए आउट ऑफ मैनी, ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन जो है कस्टमर्स के लिए वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बी, motion study. This study is a study of movement which are undertaken while doing a typical job. ये स्टडी हम लेते हैं अपने काम में जब कोई हमें टिपिकल जॉब परफॉर्म करनी होती है। इट्स मेन मोटिव इज टू रिमूव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट सो दैट जॉब कैन बी कम्प्लीटेड इन लेस टाइम। इससे क्या होता है, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है जिनका मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ, या प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही ऐसी एक्टिविटीज़, उनको बीच में से हटा देना। उससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा और जल्दी काम खत्म होगा। हम कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ वर्कर्स कम कर देना, लेकिन इस तरीके से कि काम भी स्मूथली चलता रहे। सी, टाइम स्टडी। दिस स्टडी decides the standard time taken for a particular job. After deciding the standard time, it should be checked at different intervals. It helps in deciding numbers of workers and time measurement cost. ये स्टडी डिसाइड करती है स्टैंडर्ड टाइम एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, कितना टाइम एक फिक्स लिया जाएगा किसी जॉब के लिए। जब हम एक बार अपना टाइम सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम काम करने का, मतलब जॉब करने का, तो हम चेक करते हैं हर डिफरेंट इंटरवल्स पे कि अभी तक कितना काम हो गया, अब तक हुआ या नहीं। उससे क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ वर्कर्स है ना उनको डिसाइड करने में, और टाइम मेजरमेंट कोर्स दैट मीन्स कि हर वर्कर ने कितने देर में कितना काम किया, ये इसमें हेल्प करेगा। डी, fatigue study. In this technique, Taylor wants that proper rest intervals should be given to the workers so that they regain their stamina and start working with same capacity. इस टेक्निक में टेलर चाहते हैं कि एक प्रॉपर रेस्ट इंटरवल देना चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो फिर से अपना स्टैमिना रीगेन कर सके और फिर से उसी सेम कैपेसिटी के साथ में काम कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड टाइम ऑफ ईच इंटरवल। इससे क्या होगा, हम नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कितना हमें टाइम पीरियड देना है एक एक्टिविटी के बीच में, कितना गैप होना चाहिए इसमें। Fourth is differential price wage system. This technique differentiates between efficient and inefficient workers. Taylor wants that the efficient workers should be paid more so that they put their stress on paying with per unit rate. ये टेक्निक जो है डिफ्रेंशिएट लाती है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में। टेलर चाहते हैं जो एफिशिएंट वर्कर्स है उनको ज़्यादा पे करा जाना चाहिए ताकि वो और अच्छे से नेक्स्ट टाइम काम करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि 100 यूनिट्स वाले जो हैं उनको इतना पे किया जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो 100 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको तो हम 100 के हिसाब से नहीं देंगे, हम कह सकते हैं हम 90 के हिसाब से देंगे। जो 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हम ज़्यादा पे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि 110 के पर उस पे कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उस पे करेंगे, और जिन्होंने सिर्फ 100 प्रोड्यूस किया है तो उनको सिर्फ 100 ही देंगे।
Then fifth, mental revolution. This technique emphasis on healthy relationship among management and workers. ये टेक्निक जो है हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, एक मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, कि दोनों के बीच में एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे और कोऑपरेट करें. Okay, next topic is similarities between Henry and Taylor. First is both are based on practical aspects. दोनों practical aspects पे हैं कि पहले ऑब्जर्व करा जाना चाहिए देन अप्लाई किया जाए. Second, both provide solution to managerial problems obviously. And the third is both wants to develop healthy relation among employees and management. Okay, thank you. Don't forget to subscribe my channel. Also like, comment and share. And thank you.